Okay, so in the last lecture we have seen this application, right? And we have seen inheritance as well as dynamic binding, right? ये एग्जाम्पल तो याद है ना सबको? कुछ भूले तो नहीं इसमें? एक बार कहिए तो एक बार मैं बस आपको खोल करके क्लासेस एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप ध्यान रखें। देखिए एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास में सिर्फ एक ही मेथड है, ईट है, विच इज अ जेनेरिक मेथड विच इज एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, विच विल बी इनहेरिटेड बाय ऑल द सब क्लासेस नो मैटर व्हाट, ठीक है? Now, when we have a class called as cat, which has got which doesn't have its own eat method, then the method eat will be inherited by the animal class. Okay, because cat extends animal. It has several extensions like wave tail, okay, move, right? It has a two string method. Now this two string method is something which it as a notation shows it's an overriding, right? That means the parent class must be having this method, two string method. Which parent class is having this method? No, object class. Animal is having through the object, and so this cat class is getting, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट क्लास ने बताया कि 7-8 मेथड होते हैं जो कॉमन होते हैं जिसको बना के रख दिया गया, उनमें से ये टू स्ट्रिंग है। दिस मेथड इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इससे पहले जब हमने अगर ओवरराइड हम न करें इस टू स्ट्रिंग मेथड को और फिर कैट को उठा करके सिस्टम कैट के ऑब्जेक्ट को उठा करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फुली क्वालिफाइड नेम मिलेगा कैट का, यानी क्या है, zoo डॉट हैबिटेंट्स डॉट कैट at some hash code which will indicate the some kind of location in the memory. That's the two string implementation of the object. But here we have overridden that two string representation or the two string method to print this is a cat object rather than that hash code, ठीक है? तो अब जब हम कैट को अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कैट के ऑब्जेक्ट को अगर हम डालेंगे तो जो प्रिंट करेगा वो ये चीज प्रिंट करेगा, हैश कोड प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है? These two methods wave tail and move are not in the animal, so these are the extension of the cat class, ठीक है? So, similarly we have got lion class. Lion class has got eat method which is an overridden version. So if the call goes on the lion object irrespective of whether it is referred by a lion reference variable or an animal reference variable, right? It will be redirected to the eat method which is present in the lion class. That is the dynamic binding. At the runtime, it will check which object is there, and according to the object, the nearest eat method will be called, and the nearest one is within the class itself, right? Okay. Then we have got elephant. Elephant has got eat method, which is again an overridden method. Then it has got an extension move method, right? It doesn't have a two string implementation. Similarly, we have got Persian cat, which is the child of cat class. So Persian cat is a cat, Persian cat is an animal, and Persian cat is a object. All these statements are valid. Now this eat method is again overriding, although we do not have put the annotation override because that comes when it's automatically generated. So it's not automatically generated. I have written with by hand code, so I don't have put the annotation, right? So it's very specific overridden method of the eat method. Now this Persian cat may have the eat method of itself, which is this one, then one coming from the cat and one coming from the animal class. But when if I say animal A is equal to new Persian cat, right? And A dot eat, animal A, reference variable is of the supermost type, is equal to new Persian cat, right? And then I say A dot eat, then this eat method will take the charge. Not the one which is present in the cat, not the one which is present in the animal, because this is the nearest one, right? So uh, at runtime or dynamically which particular method will be invoked is decided by the right side of the statement, like animal A is equal to new Persian cat, so right side is new Persian cat, that means which object is being created, right? तो कौन सा ईट मेथड कॉल होगा वो राइट साइड ऑब्जेक्ट को देकर के बनेगा, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल ए पे कौन कौन से मेथड और कौन कौन से वेरिएबल को हम एसेस कर सकते हैं वो रेफरेंस वेरिएबल के डिक्लेरेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा बलूफ्राम, ठीक है? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी हम जानते हैं कि भाई एनिमल ए का रेफरेंस वेरिएबल है, एनिमल का है,
लेकिन रन टाइम में पर्शियन कैट आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को पर्शियन कैट में एक्सप्लिसिटली कास्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन कॉल एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच आर अवेलेबल, विजिबल एंड अवेलेबल इन द पर्शियन कैट। आई थिंक विजिबल एंड अवेलेबल बोथ द थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है। कोई प्राइवेट होगा तो कहाँ से फिर वो ऐसे नहीं होगा, राइट? क्लियर है ना? Then we have got say African bat class. This has got again an overridden eat method, and it has an extension of move, right? So hierarchy wise, we have three hierarchies. One is animal, the second is cat, African bat, elephant, and lion, and the third level is Persian cat. ठीक है? And the topmost is object, of course. ठीक है? वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सारी कहानी? Now there is a class called as animal action, ठीक है। इसमें हमने क्या करा था, we have created different objects of different types. Cat C is equal to new cat, lion L is equal to new lion, African bat B is equal to new African bat. But this is not conforming to our principle of program to super type. This is not conforming to our principle of program to super type. प्रोग्राम टू सुपर टाइप का मतलब क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल हमेशा आप सुपर टाइप का यूज करेंगे, दैट इज एनिमल क्लास, बिकॉज वी हैव गॉट सर्टेन बेनिफिट्स along with certain restrictions, of course. ठीक है, क्लियर है? तो although if I create a list of animal, you see here I have used the super type and the implementation is subtype array list. Another implementation could be a linked list. There are furthermore implementations, right? So I can anytime replace any of the implementation by this reference variable list of animal which is of the type super type list. Just like animal A is equal to new cat, and then in the new next line I can say A is equal to new lion also. उसी reference variable को use कर सकते हैं, right? So similarly, list of animal could next in next line it can refer to a new linked list also of animal. यहाँ तक क्लियर है? लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? बात आ रही है समझ में? ठीक है। Now we have added these C, L and B, cat, lion and African bat reference variables to the list. It won't make any difference if we have animal here at all these places, right? It won't make any difference because the list that we have created is of animals. Anything which is animal itself, a cat is an animal, a lion is an animal, or whatever you can say is an animal from the hierarchical relationship that can get into this list. But if I try to add, say for example, list of animal dot add, and if let me say I want to add new string double quote hello, this is something I cannot do because string does not comes under the hierarchy of animal. ठीक है, it's not a subclass of animal by any ways, right? So it's an entirely different thing. When it's an entirely different thing, I will get the message, the compilation error, the method add animal, जो add method है, ये वाला add जो list में है, वो animal के लिए है। क्या कह रहा है ब्रैकेट में? animal बता रहा है, animal पैरामीटर बता रहा है। इन द टाइप ऑफ द लिस्ट एनिमल, लिस्ट भी बनी है एनिमल के लिए, तो जो मेथड ऐड होगा वो भी एनिमल ही लेगा, कुछ और नहीं लेगा। इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग, साफ साफ बता रहा है क्लियरली। ठीक है, मैसेज सब कुछ अपने आप में बताता है, बस आपके पास कंसेप्ट अगर है तो आप देखते ही एक नजर में समझ जाएंगे प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ठीक है आपके पास आईडी होती है, कई बार आईडी में भी अगर आप कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो समझने में दिक्कत होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप किसी भी एग्जाम्स वगैरह में जाएंगे जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, जावा के भी होंगे, सी प्लस प्लस के भी होंगे, सारे कंसेप्ट सेम अप्लाई होंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, उसके कंसेप्ट सेम रहेंगे। उस कंडीशन में आपके पास कंप्यूटर तो होगा नहीं कि आप चेक करें सिंटैक्स एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, योर लॉजिक मैटर्स देयर। ठीक है, वहाँ पे वही चीज़ सारी चीज़ डिफेक्टो होगी कि आप किस तरह से आंसर करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट तो पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। एक लैंग्वेज में आपके कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर है, दूसरी लैंग्वेज को सीखना हमेशा आसान होगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी कैन नॉट डू, दिस इज नॉट पॉसिबल। Then what we have done in the next line? This line.
जू एनिमल एक्शन नाम की कोई क्लास है, ये कहाँ पे है, ये देखिए हमने बनाई है यहाँ पर। इस क्लास को एक बार देख लीजिए पहले, याद आ जाएगा। क्या करा है हमने, इस मेथड को प्रोग्राम टू सुपर टाइप के प्रिंसिपल पर इंप्लीमेंट करा है। कैसे, एक तो लिस्ट के टर्म में कि अरे लिस्ट को भी ले सकता है, लिंक लिस्ट को ले सकता है, या किसी भी तरह की लिस्ट को ले सकता है इनफैक्ट। दूसरा एनिमल के टर्म में, एनिमल के टर्म में कि ये किसी भी एनिमल को ले सकता है, एनिमल को भी ले सकता है, उसके चाइल्ड कैट को भी ले सकता है, लायन को भी ले सकता है, पर्शियन कैट को भी ले सकता है, राइट। तो इन दोनों फॉर्म पे हमने क्या करा है, प्रोग्राम टू सुपर टाइप करा है। एग्री, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टैटिक मैंने बनाया है, अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने स्टैटिक भी बताया नहीं है ना। हालांकि कायदे से इसको स्टैटिक ही बनना चाहिए, और जो वहां पे आपने देखा था वहां ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। हैबिचुअल होने की वजह से मैंने एक चीज होती है ना, जो जब आप कोई चीज सोच सोच के हमेशा करते रहते हैं तो वो चीज आपके बिहेवियर में आ जाती है, इसलिए स्टैटिक लिख दिया। बाद में हम इसको स्टैटिक ही बनाएंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द लॉस, ठीक है। एज ऑफ नाउ लेट इट बी सिंपल नॉन स्टैटिक मेथड which returns nothing, and it's a public method, takes a list and list of animal, ठीक है। अब हमने क्या करा कि एनिमल एक्शन क्लास के अंदर क्या करा था हमने, देखिए इसी एनिमल एक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, राइट। उसको रिफर किया जू एक्शन से, फिर उसके बाद ईट ऑल एनिमल्स, ईट ऑल एनिमल्स इनफैक्ट फीड ऑल एनिमल्स होना चाहिए ना, ज़्यादा सेंस बनाता है। भाई कोड करते करते हमें कई बार ऐसा लगेगा कि हमने सेंसिबल नाम नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे उस वक्त, रीनेम करेंगे। रीनेम करेंगे तो हर जगह रीनेम करना पड़ेगा, क्या करेंगे, रिफ्रैक्टर करेंगे। रिफ्रैक्टर करेंगे, कहाँ रिफ्रैक्टर करेंगे, एनिमल एक्शन में आप जाइए, यही मेथड है, राइट क्लिक, सोर्स, रिफ्रैक्टर किधर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है डॉट, राइट। अब यहाँ पे रीनेम ऑप्शन आएगा, राइट। तो बस मैं इसको क्या करूंगा कि ईट की जगह मैं इसको फीड ऑल एनिमल कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका जहां जहां इसका रेफरेंस होगा हर जगह अपने आप इसने चेंज कर लिया। 1000 जगह रेफरेंस होगा, आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, 1000 जगह अपने आप हो जाएगा, राइट, ठीक है। नाउ अब मेरा सवाल ये है कि इस पूरे कोड को आप समझ गए हैं। अगर मैं एक नया सब क्लास ऐड करूं, से फॉर एग्जांपल लॉयन की जगह गुजरात लॉयन, गुजरात के लॉयन को क्या कहते हैं, कोई खास नाम होता है ना कुछ, नहीं, गिर, चलो हम गुजरात लाइन ही कहते हैं ना, हम समझने से मतलब है, ठीक है। गुजरात लाइन हम करने जाते हैं, ठीक है। तो वो नया क्लास में ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो उस नए क्लास के ऐड करने के बाद जाहिर सी बात है मैं जूम में उसको ऐड भी करूंगा, ठीक है। किस कोड पे असर पड़ेगा, किस क्लास के कोड पे असर पड़ेगा और किस क्लास का कोड इंटैक्ट रहेगा, एक्सटेंशन तो होगा ही, लाइन भाई ऑफ कोर्स मेक सेंस, राइट, गुजरात लाइन इज अ लाइन एंड इट्स एनिमल, तो करेंगे। तो वो चेंज नहीं हुआ, वो नया क्लास का क्रिएशन हुआ ना, उससे किसी एग्जिस्टिंग क्लास के कोड पर अभी असर नहीं पड़ा है ना। तो सिंपली लेट मी से कि मैं यहाँ क्रिएट कर दे रहा हूँ, हाँ परसेंट कैट जैसे थर्ड लेवल पे है ना, सेम सेम वे सेम वे। सो वी विल से गुजरात लायन, एंड अब देखिए अब यहाँ पे जो सुपर क्लास बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा था ना, क्यों दिखा रहा था, क्योंकि अगर आप किसी क्लास को सुपर क्लास नहीं बनाएंगे देन ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास, वो अपने आप सुपर क्लास बन जाएगा, राइट। इसको मैं चेंज कर दूं, इसको मैं क्या कह दूं, जू, सॉरी, इनफैक्ट ब्राउज कर सकते हैं हम, ब्राउज जू डॉट, दिखा नहीं रहा, हैबिटेंट्स डॉट, अब इसमें दिखाएगा लॉयन, है ना, लॉयन ये दिखाया इसमें, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, राइट, करेक्ट। मेन मेथड की जरूरत है इसमें, नहीं है, फिनिश। Now it doesn't have its extension of
each method, or it doesn't have implementation of the each method or any extension as such. So क्लास तो बन गया, चाहे तो हम each method का ओवरराइड करके इसको लिख दें, each method को let me override this method, ठीक है, अपने आप ओवरराइड आ गया, and then we say system.out.println line got from Gujarat forests are eating meat, ठीक है, एक मैसेज कर दिया हमने, ये बन गया, इम्प्लीमेंटेशन बन गया इसका, ठीक है, एक्सटेंशन डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बताइए कौन सा कोड असर अब तक पड़ा है इस पर, किसी कोड पे असर पड़ा अब तक? कोई कहीं कंपाइलेशन नहीं आई, कहीं रेड मार्क आप नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे? इधर आपको शायद नजर नहीं आ रहा है, हाँ ऐसे देखिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो फौरन क्या होने लगेगा, ये सारे रेड नजर आने लगेंगे ना, क्रॉस दिखने लगेंगे, अभी कहीं क्रॉस नहीं है, राइट, यानी कोई भी कंपाइलेशन एरर अभी तक आया नहीं है। तो अब जब हम इसको जूम में ऐड करेंगे तो किन किन क्लासेस को हमें चेंज करना पड़ेगा? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, जहाँ हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में ऐड करें उस जगह को, राइट, हाँ, यानी एनिमल एक्शन क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फीड एनिमल मेथड को कॉल कर रहा है, तो फीड एनिमल मेथड के लिए ये जो मेन मेथड है, दिस इज द क्लाइंट, उसकी सर्विस ले रहा है ना, ठीक है, जू एनिमल एक्शन क्लास के फीड ऑल एनिमल मेथड्स का की सर्विस ले रहा है, कौन सी क्लास ले रहा है? एनिमल एक्शन का मेन मेथड ले रहा है, राइट, so this main method of animal action is the client to do animal actions dot feed animals, ये स्टेटमेंट कहें तो सही है, राइट, तो इस क्लाइंट में तो हमेशा चेंज होगा, क्लाइंट में हमेशा चेंज होगा, लेकिन आप ऐसा एज्यूम करें कि ये कोड जो जनरेट हो रहा है ये बेसिकली ऐसे नहीं हो रहा है, आपके पास एक इंटरफेस है जिसमें बच्चा गेम खेल रहा है, ठीक है, या बच्चा छोड़िए, आप जू का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कर रहा है, उसके बाद एक फॉर्म आएगा ना, फॉर्म में वो ऐड करेगा न्यू गुजरात टाइगर, है ना, तो ऑब्जेक्ट तो कहीं और वहां बना ना, राइट, वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा ना, राइट, करेक्ट, तो वहां पे आपको क्लाइंट कोड नजर बेसिकली नहीं आएगा। अभी समझने के लिए क्लाइंट कोड जहां भी आपका रहेगा वो क्लाइंट कोड को तो इम्पैक्ट करना ही करना है, उसको ब्रेक करने से आप नहीं बचा सकते। भाई नया ऑब्जेक्ट नया क्लास बनाया तो उसको ऑब्जेक्ट कहीं तो बनाना पड़ेगा, कहीं तो उसको मैसेज में पास करने पड़ेंगे, राइट, हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। सो आई विल से चाहे एनिमल गुजरात लाइन कहें चाहे गुजरात लाइन जीएल कहें, एक ही बात है, इज इक्वल टू न्यू गुजरात लाइन, ये आपने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ लेट मी ऐड दिस टू द लिस्ट ऑफ एनिमल्स डॉट ऐड, और इसमें हम क्या करेंगे, गुजरात लाइन ऐड हो गया हमारे पास, राइट, सो वी आर डन एज ऑफ नाउ। क्या किसी और कोड पे चेंज आएगा? क्या फीड ऑल एनिमल्स मेथड पे कोई चेंज आएगा? ये मेथड ब्रेक हुआ? ये मेथड ब्रेक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये सुपर टाइप पे प्रोग्राम्ड है, एनिमल पे प्रोग्राम्ड है। अगर ये एनिमल पे प्रोग्राम नहीं होता तो हमें पहले तो अलग अलग हर क्लास के करस्पॉन्डिंग एक लिस्ट अलग मेंटेन करनी पड़ती, लिस्ट ऑफ लायन, लिस्ट ऑफ गुजरात लायन, लिस्ट ऑफ पर्शियन कैट, लिस्ट ऑफ एलिफेंट एंड सो ऑन। उतने तो मेंटेन करने में ही ऐसे इसकी हालत खराब हो जाती है कि आप पेपर लेकर के एक्सेल शीट लेकर के टिक मार्क कर रहे हैं कौन सा ऐड किया कौन सा नहीं किया, राइट, ठीक है, तो वर्क ऑन ऑल एनिमल प्रिंसिपल को पे काम नहीं करता ये। देखो वो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट तो नीड बेस पे है, जैसे आप फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म पे ऐसा प्रोविजन आ जाए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिकली गुजरात लाइन आ जाए, आप ये कहना चाहते हो ना, क्योंकि क्लाइंट कोड में बैकग्राउंड में किसी को जनरेट करके उसको लिस्ट पे डालना पड़ेगा, है ना, यही आप कहना चाहते हो ना। टिपिकली दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट राइटिंग अ कोड, द कोड हैज टू बी रिटन। Now it's a different thing that you choose to write that code or you do something which can automate this writing of the code.
अब आपको बताता हूँ, मैं एक बार मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, 2013 की बात है, सीपीए ग्लोबल में था मैं, 2013 के अर्ली की बात है। तो एक प्रोजेक्ट था, वो उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेबल बनाने में फोकस कर रहे थे। तो मैंने क्या करा कि वहाँ पे एक टेक्निक ये यूज़ करी, शायद आप लोग क्लियरली समझ में आया कि ना आया। एक डिज़ाइन अप्रोच यूज़ करा जिसमें हमने क्या करा कि भाई हम कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। अब जैसे मैं कोई भी एनिमल बना रहा हूँ, तो यहाँ क्या एनिमेशन हो सकता है, कैट के साथ में एनिमल जोड़ दूँ, कैट एनिमल और एनिमल कैट, ठीक है, एनिमल एलिफेंट, एनिमल गुजरात लायन, ठीक है। तो जहाँ भी एनिमल ऐड हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये समझ में आ रहा है कि ये वन ऑफ द एनिमल है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो तो खैर रियल प्रोजेक्ट था तो उसमें काफ़ी सोफिस्टिकेशन था, अदरवाइज मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अब मैंने कोड यूज़ करा तो उसमें रिफ्लेक्शन एपीआई होती हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई क्या करती है, जैसे आपका आईडी है, अगर मैं इसको डीबग करता हूँ ना, तो यहाँ दिखाता है ना कौन सा ऑब्जेक्ट बना, कौन से ऑब्जेक्ट अंदर कौन से वेरिएबल है, ये सारा एक क्लास फाइल होती है। उस क्लास फाइल इज द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन एपीआई, उसको हम यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करके हम डायनेमिकली क्लास को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने एक नया एनिमल गुजरात लायन बनाया और सर्वर को रिस्टार्ट करा, तो ऐसा टेक्निक रखा था कि वो रीड करे कि भाई इस कन्वेंशन को फॉलो करने वाले नए नए एंटिटीज कौन कौन से ऐड हुए हैं या नए नए कंपोनेंट कौन से ऐड हुए हैं, और उसके नाम से वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर ले ये किसका चाइल्ड है, ठीक है। अब उसके थ्रू क्या हुआ कि उसने अपने आप जो बैकग्राउंड में ऐड वेड करने वाला कोड है वो जनरेट कर दिया उसने, ठीक है। दिस इज पॉसिबल, लेकिन कान बहुत घुमा के पकड़ना पड़ता है। अच्छा ये भी जान लें कि रिफ्लेक्शन एपीआई का थोड़ा सा ओवरहेड भी होता है, यानी ये सब काम वो डायनेमिकली करेगा ना एट द रन टाइम, लेकिन आप चाहें तो उसको लेजी लोडिंग का अप्रोच यूज करके उस वक्त के लिए डाल सकते हैं जब सर्वर को आप रिस्टार्ट करें, नॉट एवरी टाइम, ठीक है। एक चीज होती है कि मतलब ईगर क्लास लोडिंग, जिसमें जैसे ही आपने उसको एज सुन एज आपने बनाया वो क्लास लोड हो जाए, रेडी हो जाए, वो ना करके लेजी क्लास लोडिंग का फंडामेंटल यूज करते हैं, फंडा यूज करते हैं, जिसमें वो जब आप सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे या जब आपको उसको यूज करना होगा उस टाइम जाकर के वो लोड होगा। तो उस तरह हम क्या करते हैं, जो ओवरहेड हमारा रिफ्लेक्शन एपीआई ले रहा है रन टाइम पे काम करने का, जब भी कुछ रन टाइम पे होगा तो ऐसी बात है वो टाइम आपका एक्सक्यूशन टाइम खाएगा, उसको हम बचाते हैं इनसाइड टेक्निक से। पॉसिबल बट नॉट इन अ ट्रिवियल वे, ठीक है। कभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना हो तो उसमें आप ये एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हो, क्योंकि ये एक अलग ही टेक्निक हो जाएगी प्रोग्रामिंग की। मतलब मैंने एक आर्किटेक्चर पे सेटल कर लिया, इस आर्किटेक्चर में जो जो क्लासेस बनाऊंगा उन क्लासेस का नाम जो होगा वो सर्टेन कन्वेंशंस पे बेस होगा, ठीक है। दूसरा, और कन्वेंशंस के बिना पर जो उसका एक मैनेजर क्लास होगा जो हर बार सर्वर के स्टार्ट होने पे रन होगा, ठीक है, वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये इसका किस क्लास से क्या रिलेशन है और इसके आ जाने पर हमें क्या चीजें ऐड करनी है, वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ठीक है। क्या क्लियर है? तो इसका मतलब इस क्लास पे हमें कोई असर नहीं पड़ रहा है। नाउ गेटिंग बैक टू आवर एनिमल एक्शन क्लास, मान लीजिए कि अभी अभी आप देख रहे हैं कि इसमें चार चार जो हैं एलिमेंट एडेड हैं, 4000 भी हो सकते थे, राइट, जू में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, 4000 भी ऐड हो सकते थे। अब ये जब अगर आप इसको रीड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करना चाहें आप, राइट, तो आप प्रिंट कैसे करेंगे इसको, सारे एनिमल्स को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर लूप कैसे करेंगे बताइए जरा, बताइए, कोई बताइए, क्या लिखूं मैं? Anyone would like to try hands on? इससे इससे धड़क खुल जाएगी, आ जाइए आप सिस्टम बैठ जाइए। एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है बेटा, नहीं ये तो ऑलरेडी लिस्ट ऑफ एनिमल्स है हमारे पास, इसी को हमें रीड करके प्रिंट करना है कौन कौन से हमारे पास। टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चाहे ऑब्जेक्ट में हो चाहे
उस क्लास में हो, कहीं ना कहीं तो मौजूद मिलेगा। हम बस टू स्ट्रिंग से प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कौन करना चाहता है? नहीं आएगा, हम सब मिलके करेंगे, करने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आने पे क्या होता है ना कि जब आप पेयर प्रोग्रामिंग करेंगे, अक्सर आप जॉब में जाते हैं आप, तो आप देखेंगे आपको बैठा दिया जाता है। एक आदमी या तो रिमोटली आपके सिस्टम को वॉच कर रहा होता है अगर रिमोट है, वरना आपके साथ बैठे रहेगा। वो हर चीज़ें पूछेगा आपसे, अच्छा ये क्यों करा, वो क्यों करा, है ना? हो सकता है फ्रेशर लेवल पे ना हो, लेकिन 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। बिना कोड के आपको बाद में लगता है जितने हम सीनियर होते जाएँगे, हम मैनेजर बनते जाएँगे, लेकिन वो अगर पीपल मैनेजमेंट नहीं है, अगर वो टेक्निकल है, तो फिर वो उतना ज़्यादा आपको फ़ोकस करेंगे, आप करके दिखाओ हमारे सामने। ठीक है, बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेज़ आप यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, वो हर चीज़ को देखेगा आपको। यहाँ तक देखेगा कि आप आईडी यूज़ कर रहे हो, तो आईडी के शॉर्टकट से कितना वेल फ़ैमिलियर हो, चूँकि आपको क्विकली प्रोग्राम करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे वो लोग। ठीक है, तो कौन करना चाहेगा ये? कोई भी आ जाए? 2 लोग आने चाहिए, 2 लोग आ जाएँ। अगर एक एक की थोड़ी हिम्मत दोस्त के साथ बंधी रहती है थोड़ी-सी, कौन आएगा? कोई भी आ जाए, जो भी आ जाए। बाकी सारे लोग हेल्प करेंगे। सर, आप खुद मुझे बता दिया था बेटा। सर मैं सिंपल सा अगर प्रिंट कराने के लिए मैं कर रहा हूँ ना, तो फॉर मैं बना देता हूँ, लेकिन मैं क्लास के लिए एनिमल एक्सटेंड कर रही हैं सारी चीज़ें। तो जो लिस्ट ऑफ एनिमल है उससे हम आइटरेट करा देंगे और उसे प्रिंट करा। कराओगे यूजिंग फॉर इशू। यस सर। लिस्ट ऑफ एनिमल। लिस्ट तो राइट हैंड साइड में जाती है ना, ओके इधर सर। रेफरेंस वेरिएबल होता है, कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पे रेफरेंस वेरिएबल होता है, उससे एनिमल का होता है, लिस्ट एनिमल का नहीं होता। अगर आप फॉर इशू यूज कर रहे हो, तो सर लेफ्ट हैंड साइड पे फिर क्या हाँ, आएगा? लिस्ट ऑफ एनिमल्स आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा लिस्ट ऑफ सॉरी एनिमल्स। सॉरी, राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ एनिमल्स आएगा, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड पे एनिमल आएगा। लिस्ट ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स। एनिमल्स देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है, रेफरेंस वेरिएबल नहीं चाहिए बेटा एनिमल का। एनिमल का सर एनिमल ये रेफरेंस वेरिएबल में तो वेरिएबल नहीं लिखा है। देखिए इनको आता है, नो डाउट, लेकिन वहां पे जाने में थोड़ी घबराहट हो रही है, ये चीज खत्म करनी है। वी इक्वल टू कॉलन होगा बेटा। लेकिन सर क्या कह रहा है देखो, लिस्ट ऑफ एनिमल्स कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरी क्या कहीं से है, रेफरेंस वेरिएबल है ना वो, यस सर। लिस्ट का एल कैपिटल क्यों होगा, फिर ऐसे स्मॉल होगा, आपको कन्वेंशन फॉलो करके हाँ बताया हाँ, है। एक सेकंड। ये प्रोग्रामिंग में यही प्रश्न पड़ता है। ठीक है, अब कभी प्रश्न बना रहा है उसकी बॉडी बनाओ और ये करना है। करली ब्रेसेस कितना सर इसमें करली ब्रेसेस कहाँ है? ये रहा। जो मेरा का कोई नहीं तो वो थोड़ा दिख नहीं रहा था सर। आता है एक अच्छा लग गया नहीं, एनिमल अब लिस्ट क्या करना है आपको, लिस्ट से रीड करना है, रीड। रीड मतलब एक एक एलिमेंट को रिट्रेस करना है, यस सर। डिलीट नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड है, ऐड करने के लिए ऐड मेथड है। अब कोई मेथड होगा जो रीड करने के लिए होगा, यानी आप लिस्ट से अरे ये है ना, ये यस सर। अरे से आप रीड कर रहे हैं और उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को पास करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। सर अगर इसमें स्कैनर हम यूज कर लें तो? कीबोर्ड से नहीं रीड करना है बेटा, ओके सर। लिस्ट में ऑलरेडी 4 एलिमेंट एडेड हैं, उनको आइटरेट करके रीड करना है, आइटरेट करने के लिए तो हमने फॉर लूप लगाया है, यस सर। रीड करके उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए सर मैं क्या मेथड यूज कोई और करूँगा? तरीका है? अच्छा, अच्छा ठीक है, अगर रीड की बात करें जाए, इसमें हम ये स्कैनर का यूज कर सकते हैं। रीड का
नहीं सर, रिमूव नहीं कर रहा। रीड नहीं है सर। लिस्ट ऑफ एनिमल करो। एक बार रीड डॉट एनिमल लिस्ट ऑफ एनिमल रीड डॉट करके देखना एक बार आप। डॉट रीड करके कुछ आ रहा है? नहीं, नीचे करिए, नीचे आइटरेटिव में क्या है? लिस्ट ऑफ आइटरेटिव और सेट साइज स्ट्रिंग वेट लेकिन इसके अंदर तो वही पास ही करा ना हमने, कौन सा वेरिएबल कौन सा हुआ है। रीड डॉट करके कर सकते हैं। रीड डॉट लिस्ट ऑफ एनिमल नहीं होता है। क्या करना है सर? प्रिंट क्या करना था? ए डॉट ईट। जितने भी ये सारे लिस्ट के एनिमल के फीड के वो है ना, वो सारे हमें प्रिंट करके दिखाना है। नहीं सर, मैं चेक कर रहा हूँ सर, वो चेक कर रहा था कौन कौन से फंक्शन हैं, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स। वजह ये है ना कि मैं कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे कोई रीड मेथड आपको तलाश नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास ए में बारी बारी से एनिमल से लिस्ट से एक एक ऑब्जेक्ट उठ करके ए में ऑलरेडी आ ही रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखिए कैपिटल एस से। अच्छा ये कर लीजिए, हाँ इसमें कुछ नहीं, डबल कोट नहीं, सिंपल ए डालिए, बस ए डाल दीजिए, बस बस ए डाल दीजिए, बस रन करिए, कंट्रोल सेव करिए, कंट्रोल एस से सेव करिए, रन करिए। हर हर चीज तो रिटाइप हो गई ना। नहीं ये तो जो प्रिंट कर रहा है, ये तो ये नीचे जो मेथड है उसकी वजह से कर रहे हैं ना। आप ऊपर देखिए, ये देखिए दिस इज द कैट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि कैट में हमने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा था, राइट। और उसके बाद क्या आ रहा है, वो लाइन के लिए, अफ्रीकन बैट के लिए, गुजरात लाइन के लिए, इन सब के लिए टू स्ट्रिंग मेथड ओवररिडन नहीं था, तो वो एनिमल ऑब्जेक्ट क्लास का सॉरी टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का आ रहा है, व्हिच इज जस्ट प्रिंटिंग द हैश कोड। समझ में बात फिलहाल सर समझ गए? अच्छा, इसके अंदर अगर ये जो हमारे एड्रेस आ रहा है, तो ये गार्बेज वैल्यू है या नहीं नहीं, ये वो एक्चुअल है। इसका? नहीं ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट इनक्रिप्टेड वैल्यू, इट्स अ हैश कोड। ओके सर। आप इसको यूज करके जेवीएम में नहीं पहुंच सकते, लेकिन जेवीएम को पता है कि इसको यूज करके उस ऑब्जेक्ट तक हीप में कैसे पहुंचे, वो जेवीएम जानता है अपने एल्गोरिथम के हिसाब से। ए डॉट ईट भी कॉल कर सकते थे आप, नो प्रॉब्लम, इसमें error क्यों आ रहा है? लेकिन ए डॉट ईट में आप देखो ए डॉट ईट क्या कर रहा है, ईट मेथड खुद ब खुद क्या कर रहा है, कुछ अपने अंदर प्रिंट कर रहा है ना, यस सर। तो कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा है, और यहाँ तो स्ट्रिंग चाहिए ना, ए डॉट ईट बाहर चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर नहीं रहेगा वो। अगर ए डॉट ईट कॉल करना है तो उसको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड टाइप है। और प्रिंटलन मेथड क्या एक्सपेक्ट करता है, स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है आपसे, ठीक है, याद है, क्लियर है? यस सर। अब जरा इस कोड को कमेंट करिए, इसको पूरा ब्लॉक कोड में डालिए, नीचे वाला कोड भी ब्लॉक ब्लॉक में डाल दिए, ताकि ये सारी चीजें हट जाए। कुछ और भी करना है हमें। स्टेटमेंट बनाने के लिए कैसे भी एक सेकंड, ये क्या आ रहा है? हाँ, ये वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि लिस्ट ऑफ एनिमल तो एनिमल की लिस्ट है ना, ये स्ट्रिंग में आएगा, इसमें ये चलेगा नहीं, ये एनिमल टाइप की लिस्ट होती है ना, इस वजह से ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चल पाएगा।
देखिए गाइस, फॉर ईच लूप का यूज करके आपने ए को प्रिंट कर दिया है ना? यानी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया सब पर, जिसका टू स्ट्रिंग मेथड ने अपना काम करा, और या तो ओवर रिडन टू स्ट्रिंग मेथड से मैसेज आया या फिर आपके पास हैश कोड आया, राइट? यस सर। अब मैं चाहता हूं कि फॉर ईच लूप में यूज करके नॉर्मल ट्रिवियल यूज करें आप, और ए को प्रिंट करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, मतलब एक एक करके रिट्राइव करें। लिस्ट ऑफ एनिमल्स का यूज ना करें। लिस्ट ऑफ एनिमल्स का यूज तो करनी है आपको, आप फॉर ईच लूप में यूज करके ट्रिवियल फॉर लूप यूज करें जो लिस्ट ऑफ एनिमल्स पर, ठीक है? तो लिखो। एनिमल कैपिटल बात तो वही हो जाएगी, फिर हम तो यही बना रहे हैं ना फॉरेस्ट में, ट्रिपल वाला का यूज करेंगे तो लिस्ट ऑफ एनिमल। क्वेश्चन क्या है? ये फॉर ईच लूप में कितना सिंपल यूज करके आपका काम होगा? क्वेश्चन को ये लिखा जाना है, राइट? वन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लिस्ट ऑफ एनिमल्स, राइट? हम क्या करेंगे? फॉर ईच लूप यूज करके नॉर्मल टेबल यूज करके सिंटेक्स तो चलाओगे कहाँ तक? आई को हम वहाँ तक चलाएंगे कि आई इक्वल्स टू जीरो तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम हिंट आई दे रहे हैं आई इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एनिमल है, और लिस्ट ऑफ एनिमल हमारे पास क्या क्या है? कैट है और लॉयन है, मतलब कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम देख लेते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। ये तो जीरो से चलेगा क्योंकि ये एरे है लिस्ट ऑफ एनिमल, इसकी इंडेक्सिंग जीरो है। अगर जीरो से ही हम चला देते हैं ना, और कंडीशन तो मीट नहीं होगी ना। कंडीशन मीट ही नहीं होगी। आइज लाइज इन कितना होगा फिर? आइज लाइज इन एनिमल, ये नहीं होगा। एनिमल कलर टू रिजॉल्व टू वेरिएबल नहीं हो सकता, फिर आइज लाइज इन कितना होगा? 0 1 2 3 4 5। सर अगर हम एनिमल से चलाए ना, एनिमल से अगर चलाया जाए तो ज़्यादा बेटर है फिर। बेटर वाली बात है सर। We are not talking about the convenience, right? We have seen the convenient method is using the for each loop, right? Yes, We sir. are not talking about the convenience as of now. We are trying to figure out the technicality, ठीक है? And try to learn with something, right? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इसको ट्रिवियल फॉर लूप से एक बार हम करना चाहते हैं। अब कैसे करें इसको? देखिए डिफिकल्टी आपको हो रही है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। Yes, sir. वो फॉर लूप कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। लिस्ट ऑफ एनिमल का साइज 5 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, आपको हार्ड कोड तो करना ही नहीं। हार्ड कोड क्यों करेंगे आप? हार्ड कोड क्यों करेंगे? जैसे अरे में लेंथ वेरिएबल होता है ना, Yes, sir. ये भी तो अरे ही है, तो शो होगा। 5 कर दो एक बार। ठीक है राई। चलो लगा दो। डॉट एनिमल में क्या इश्यू आ रहा है? इनिशियलाइजेशन तो कैसे करेंगे? इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं, इंट आई इक्वल्स टू करिए, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू लिस्ट लेस ऑफ देन रहेगा, जब जीरो शुरू करें तो हमेशा लेस देन रहेगा। लेस देन ओनली लेस देन साइज साइज। कहाँ चला गया फिर? लिस्ट ऑफ एनिमल्स, हाँ,
SIZ नहीं आ करेक्ट है पूरा लिखिए तो पूरा लिखिए डॉट साइज आ गया। जैसे अरे में लेंथ वेरिएबल होता है वैसे इसमें साइज हाँ ये प्लस प्लस अब इसमें ब्रैकेट कर ली अभी सही है। यस सर अब इसके अंदर एनिमल अब कैसे लेंगे एनिमल डॉट एनिमल ए में चाहिए ना एनिमल ए में ए डॉट ये और ये नहीं चलाना है मुझे क्या करना है ए को System. प्रिंट करना है सिस्टम डॉट प्रिंट में ए डॉट नहीं है ए ले लेंगे ये एक क्या सेकंड में क्या ए में कुछ आया है क्या क्या कह रहा है देखो क्या कह रहा है The local variable may not have been initialized. अच्छा यहाँ सीखने की दो चीजें भाई सुने ध्यान सुने guys very important thing एनिमल ए एक बार कोड को वापस करो बस सेमीकोलन में छोड़ो उसको जरा देखो एनिमल ए इक्वल टू नल भी नहीं किया इन्होंने राइट अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल होता तो क्या होता अपने आप इंस्टेंस वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू लेता व्हिच इज नल इंटीजर टाइप होता तो जीरो लेता फ्लोट होता तो 0.0 लेता कैरेक्टर होता तो एम्प्टी कैरेक्टर लेता बूलियन होता तो फॉल्स लेता कुछ ना कुछ लेता स्टेट वेरिएबल के लिए मेथड लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी क्या करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू पिक नहीं करते हैं तो अगर ये मेथड के अंदर बना हुआ है मेन मेथड के अंदर बना हुआ है मेथड लोकल वेरिएबल है इसमें अगर आपने इसको अनइनिशियलाइज छोड़ रखा है अगर इक्वल टू नल भी नहीं करा है तो आप उसको यूज करने से पहले जब आप यूज करेंगे अगली लाइन में वो कंपाइलेशन एरर दिखा रहा है और क्या कह रहा है द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड यानी इनिशियलाइज किए बिना आप उसको यूज कहीं कर ही नहीं सकते तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड लोकल वेरिएबल हमेशा ध्यान रखें इंस्टेंस वेरिएबल विल टेक अ डिफॉल्ट वैल्यू बिकॉज उसका रेफरेंस वेरिएबल है ऑब्जेक्ट के ऊपर आप उसको कॉल कर सकते हैं मेथड लोकल वेरिएबल में मेथड को कॉल करने के बाद इंटरनली वो सारी चीजें स्टैक में जाती है राइट करेक्ट है उसको कंपाइलर यहीं पे रोक देगा और जहां कंपाइलर रोक देता है वहां पे किसी भी तरह से रन टाइम रन होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है उस प्रॉब्लम के लिए नहीं इसमें अभी पता नहीं ना एनिमल ए कहाँ से उठाना है उसको बताना अभी तो पड़ेगा ए में नल है ना ए में नल है अभी उसमें तो वो जाना चाहिए ना एक एक एलिमेंट जाना चाहिए कैसे जाएगा एक एक करके सर मैनुअली हमें करना पड़ेगा कैसे मैनुअली प्रोग्राम लिख रहे हो मैनुअली करोगे मैनुअली नहीं करोगे बेटा एक एक करके नहीं करोगे अरे भाई ये बताओ अरे में कैसे करते थे इंडेक्स यूज करते थे जरा देखो लिस्ट ऑफ एनिमल्स पे कोई इंडेक्स से रिलेटेड कोई मेथड है क्या लिस्ट ऑफ एनिमल्स डॉट लगाओ इनको डॉट लगाओ इन हटाने नहीं ऐसे नहीं डॉट लगाओ अब देखो सारे मेथड देखो कुछ ऐसा मेथड दिख रहा है जिससे रीड किया जा सकता है या रिट्राइव किया जा सकता है बताओ भाई गेट दिखा ना यस गेट क्या मांग रहा है इंडेक्स मांग रहा है लूप में आई क्या है इंडेक्स है हमारा यस सर क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ डायनामिक अरे 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 है तो अरे ही ना बस आई डाल दो अब रन करो आई डालो अब ए इज इक्वल टू इतना पूरा करना पड़ेगा ना तुम्हें इसको नल की जगह ले जाके उधर डाल दो एक तो कट करो इस पूरे को इसको नल छोटा इक्वल टू नहीं इक्वल टू नहीं ये ऊपर वाली लाइन कट करके नीचे ले आओ पूरे ऊपर वाले लिस्ट ऑफ एनिमल्स को ये पूरा कॉपी पेस्ट तो आपने देखा जो गेट मेथड है वो इंडेक्स को ही मांग रहा है ठीक है क्लियर हो गया गाइस वही वाला है वही सर सेम ही चीज है बट देखा जाए वो थोड़ी एफिशिएंट है वो आसान है वो आसान है ये कह सकते हैं भाई इंट्रोड्यूस क्यों करा गया ये जावा का नेटिव तरीका नहीं था दूसरी लैंग्वेज में पहले से यूज करता था जावा ने अडॉप्ट करा क्यों करा क्योंकि जाहिर बात है उसमें बेनिफिट है राइट बट यू विल सी दैट सम टाइम यू विल नीड दिस ट्रिवियल फॉर लूप कब ऐसा जरूरत पड़ सकती है जब आप कुछ ऐसा काम करना चाहें जैसे डाटा साइंस टाइप का काम करते हैं ना स्लाइसिंग जिसमें करते हैं है ना डाटा फ्रेम में क्या करते हैं डाटा पाइथन से अक्सर लोग वाकिफ होंगे आप स्लाइसिंग करते हैं मतलब एक इंडेक्स स्टार्ट देते हैं एक एंड देते हैं बीच में कॉलन लगाते हो क्या करता है उसने बीच के एलिमेंट को एक कंप्लीट लिस्ट से निकाल देता है उसको स्लाइसिंग कहते हैं मतलब एक लिस्ट से कुछ एलिमेंट काट के निकाल दिया आपने तो वहां तो आपको इंडेक्स में मूव करना पड़ेगा ना आप ऐसा वो तो फॉर ईच लूप तो डिफॉल्ट है वो शुरू से शुरुआत स्टार्ट करेगा लास्ट से खत्म करेगा
ना तो उसमें साइज का मैटर करता है, सब पर चलेगा। अगर स्लाइसिंग वगैरह आपको करनी है तब फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल फॉर लूप ही यूज करना पड़ेगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 5 एलिमेंट लिए हैं और हम ये चाहते हैं बस इसमें हम लॉयन और अफ्रीकन मैट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, स्लाइसिंग वाली बात हो गई इन दो को, तो इसके लिए ये i इज इक्वल टू 1 से शुरू करिए, i इक्वल टू 1 i इज लेस देन साइज माइनस 1, साइज माइनस 1 बस करेक्ट है। माइनस 1 करके देख लो, ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम दो एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, दो आ गया, बीच के दो आ गए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने इंडेक्स को यूज करा है। तो मतलब ये बेनिफिट है इसका। हाँ, दोनों में अगर आपको डिस्टिंग्विश करने को कहा जाए तो यू नो कि स्लाइसिंग के काम के लिए आप कभी भी फॉर ईच लूप को यूज नहीं कर सकते। वो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो सब कुछ करेगा, वो स्टार्ट से लेके आखिर तक ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। अब वो जबरदस्ती आप उसके अंदर कोड उठाए कि आप चेक करें कि इंडेक्स पोजीशन क्या हो रही है, एक अलग से फॉर i इक्वल टू 0 फॉर लूप के ऊपर से चलाना शुरू करें, उसमें i प्लस प्लस करें और हर एक को आप काउंट करते जाए, वो कोई फिजूल तरीका है, राइट। जब क्लीन मेथड मौजूद है तो फिजूल तरीके से काम नहीं करना होता है, ठीक है। वर्क अराउंड पॉसिबल है, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग। क्लियर यहाँ तक? अभी तो समझ लेते हो, समझ गए, हो गया सर, हो गया, चलो। गाइस यहाँ तक क्लियर है? अब भाई हमने प्रोग्राम टू सुपर टाइप का जब यूज करा था तो हमने इसमें दो लेवल पर प्रोग्राम टू सुपर टाइप का कंसेप्ट यूज करा था फाइंड ऑल एनिमल्स मेथड के अंदर, एक लिस्ट पे करा था और एक एनिमल पे करा था। तो एनिमल पे तो ठीक है, हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए ऑलमोस्ट। अब अगर मान लो ये जो लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट ऑफ एनिमल्स है, कभी कभी कोई ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें हमको प्रिंट करके देना है गवर्नमेंट को कि कौन कौन से जानवर हमारे मौजूद है, ठीक है, वो सारे हमें प्रिंट करके देने हैं, ठीक है, यानी रीड ऑपरेशन है, ठीक है, करेक्ट। तो उस कंडीशन में या रैंडमली रीड करना है कि इस लिस्ट के इस इंडेक्स पर कौन सा जानवर मौजूद है, ठीक है, जैसा अभी हमने ट्रिवियल फॉर लूप में करा, तो बिना फॉर लूप लगाए सीधे इंडेक्स पोजीशन दीजिए, रीड कर लीजिए, इस तरह के काम करने हैं। तो ये कौन से रीड इंटेंसिव ऑपरेशन है, राइट। जब भी रीड इंटेंसिव ऑपरेशन होता है तो डाटा स्ट्रक्चर हम क्या यूज करते हैं, गाइस 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 ध्यान दो, बातें नहीं करो। जब भी रीड इंटेंसिव ऑपरेशन होता है, रीड इंटेंसिव ऑपरेशन होता है तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, अरेज यूज करते हैं, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन उसको डायनेमिकली कहीं भी मूव करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। सीक्वेंशियल मूवमेंट नहीं है उसमें, डायनेमिक मूवमेंट है, इंडेक्स पोजीशन यूज करो किसी भी लोकेशन पहुंच जाओगे। लेकिन मान लो कि इसी मेथड का जो फीड ऑल एनिमल है, इसी तरह कोई एक और मेथड होता है जिसमें हम क्या चाहते हैं कि भाई उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को फिगर आउट करके उसको उसकी डेथ हो गई, उसको रिमूव करना चाहते हैं जू से, या किसी दूसरे जू में मूव करना है तो वहां से निकालना है लिस्ट में से, ठीक है, या कोई जू से किसी और जानवर को जू के लिए लाया गया है, उसको जू की लिस्ट में ऐड करना है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर, ठीक है। दैट इंडेक्स पोजीशन कुड बी एन आईडी, जैसे उसके गले में कोई एक कोड टैग लगा दिया आपने, एक आईडी है, उस आईडी के हिसाब से आप लिस्ट में उसी ऑर्डर में ऐड करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, लिंक लिस्ट, क्योंकि ऐड और रिमूव ऑपरेशन करना है, राइट। रीड जहां करना है, एक्सेस करना है, वहां के लिए हमें डायनेमिक रिट्राइवल चाहिए, ठीक है, सीक्वेंशियल नहीं चाहिए, है ना। उसके लिए हम अरे यूज करेंगे। लेकिन जहां एलिमेंट को ऐड करना है, रिमूव करना है, वहां पर क्या होगा, लिंक लिस्ट यूज करना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की लिस्ट हमारे पास आ रही है, हो सकता है ये फीड ऑल एनिमल की जगह कोई और मेथड होता है जो रीड करने का काम भी करता है और एडिशन या डिलीशन का काम भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब मैं एक तरह का जेनरिक मेथड लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो लिस्ट ऑफ
एनिमल्स जो जा रहा है ये एज अ अरे लिस्ट न जा करके, यानी एज अ अरे न जा करके एज अ लिंक लिस्ट चला जाए। यानी एक मेथड तो मैंने ये कॉल करा, मैं दोबारा से इसी को दोबारा से कॉल कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये लिस्ट ऑफ एनिमल्स जो जा रही है ये अब सेम एलिमेंट्स को होल्ड करे, सेम लिस्ट को होल्ड करे, बट इट्स अ लिंक लिस्ट नाउ। क्या करें इसके लिए बताओ? कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताओ? चलो इसको हम ऐसे कर ले, इस लाइन के बाद ए डॉट नहीं सॉरी, लिस्ट ऑफ एनिमल्स है ना, सॉरी, लिस्ट ऑफ एनिमल्स यही है, इसको कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? लिंक लिस्ट में। तो डालेंगे तो लिस्ट ही, मान लो हम उसी रेफरेंस वेरिएबल को यूज कर लेते हैं लिस्ट ऑफ एनिमल्स को, ठीक है। लिस्ट ऑफ एनिमल्स इज इक्वल टू लेकिन पुराना लॉस हो जाएगा ना, इसको मैं कहता हूँ, हाँ दूसरा वेरिएबल लेते हैं, लिंक्ड लिस्ट, एल कैपिटल कर दिया, लिंक लिस्ट ऑफ एनिमल। नाउ दिस इज अगेन अ लिस्ट, दिस इज अगेन अ लिस्ट इज इक्वल टू, and this has to be a list of what? Animal. So we will specify at the compile time ताकि रन टाइम का ओवरहेड हमारा बच जाए, ठीक है। एनिमल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट बन गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें सारे एलिमेंट्स को लिस्ट ऑफ एनिमल से लिंक लिस्ट ऑफ एनिमल में ट्रांसफर करने हैं। कैसे करेंगे बताओ? और इसी को हम पास कर देंगे यहाँ पर अब की बार सेम मेथड में। देखो इस मेथड की कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई सिंटेक्स नहीं आई, उसने अरे लिस्ट को भी एक्सेप्ट करा, उसने लिंक लिस्ट को भी एक्सेप्ट करा। कैसे ट्रांसफर करें ये बताइए? और एक तरीका ये हो सकता है, जैसे ये बता रहे, क्या नाम है आपका? फहद बता रहे हैं कि भाई हम एक फॉर लूप चलाएं, एनिमल फॉर ईच लूप भी चला लेंगे, तो एक एलिमेंट हमको मिल जाएगा, उसको उठा करके मैनुअली हम डाल दें, सारे के सारे एक ही बार में डाल दें। तो ये सही कह रहा है, ये फंक्शन भी ऐसा कुछ होना चाहिए प्रोविजन कि हम सारे लिस्ट को, एक कलेक्शन को उठा के, इसको कहते हैं एक कलेक्शन को उठा के दूसरे कलेक्शन में डाल दें। और ये सिर्फ लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट के बीच में ही महदूद नहीं है, सिंपल अरे को भी आप लिंक लिस्ट में डाल सकते हैं, लिंक लिस्ट से अरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों कोई भी कंपेटेबल कलेक्शन हो, कंपेटेबल होना चाहिए। अब ये तो नहीं कह सकते कि हैश मैप एक इंटायरली डिफरेंट चीज हो गई, उससे लिंक लिस्ट उठा के उसमें डाल दें, नहीं कर सकते, लेकिन कंपेटेबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट ऑफ एनिमल, क्या मेथड हो सकता है बताओ? एड ऑल कलेक्शन, ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या डाल दें? लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसको दोबारा से प्रिंट करना चाहिए, लेकिन अब की बार के प्रिंट करने और इस प्रिंट करने में, फीड एनिमल्स की को कॉल करने और अब फीड एनिमल्स को कॉल करने में फर्क होगा। इस पे जो एल्गोरिथम लगेगा वो अरे के हिसाब से रिट्राइव करके लगेगा, और इसमें जो एल्गोरिथम लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा? वो लिंक लिस्ट के साथ लगेगा। काम दो बार हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट बस दो बार प्रिंट होने से ज्यादा कुछ आपको, ओके राइट, ठीक है, दिख रहा है आप? ऊपर आपने शायद फॉर लूप में प्रिंट करा होगा ना, इसलिए आ रहा होगा। क्लियर है? कैस, ठीक है। हाँ, क्या कर रहा था? जो काम एक लाइन में हो रहा है वो आपको
फॉर लूप लिख करके फॉर लूप के अंदर करना पड़ेगा ना, हाँ उस तरह के करेंगे। दूसरी बात जब एक सिंपल तरीका जो जो सिंपल समझ में आ रहा है, ऐड ऑल है ना, ये रीडेबल है कि नहीं रहता? मतलब एक ही डाटा स्ट्रक्चर आप यूज करना चाह रहे हैं ना, जॉइन को डिलीट करना है इसके थ्रू, है ना। तो आपने मान लीजिए, आपने देखिए दो लिस्ट मेंटेन रखी, एक लिंक लिस्ट रखी, एक अरे लिस्ट रखी, ठीक है। जैसे डिलीट स्पेसिफिक एनिमल आपने करा, उसमें आपने इंडेक्स पोजीशन डाला या ऑब्जेक्ट डाला। रिमूव में दोनों मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट से भी होते हैं जो इक्वलिटी को चेक करता है, और दूसरे इंडेक्स पोजीशन से भी होता है। दोनों में से कोई भी यूज करके आप रिमूव कर सकते हैं। कोई एक मेथड आपने कॉल करा, उसमें उस एनिमल का नाम पास कर दिया या उसका इंडेक्स पास कर दिया, वो डिलीट कर देगा। लेकिन उसमें पास क्या करेंगे आप? उसमें लिंक लिस्ट पास करेंगे। अरे के अंदर ये चीज स्लो होगी, ये चीज स्लो होगी। ना ना ना, सुनो सुनो, मेमोरी की वेस्टेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बने हैं वो सिर्फ यही बने हैं हीप में। चाहे इस लिस्ट की बात करें चाहे इस लिस्ट की बात करें, उसमें सिर्फ रेफरेंस ऐड हो रहे हैं। फर्क डाटा स्ट्रक्चर का है। डाटा स्ट्रक्चर में जैसे अरे है, अरे में आपको कहा कि अगर सिर्फ आपको रीड ऑपरेशन करना है तो रीड ऑपरेशन ज्यादा फास्ट किस पे होता है? अरेज पे होता है। तो वहां मैं अरे लिस्ट यूज कर रहा हूँ। अरे लिस्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि डायनेमिक अरे बन जाए। वो मुझे साइज को बढ़ाते घटाते वक्त मुझे अपने दिमाग में जोर ना देना पड़े, वो लॉजिक बिजनेस लॉजिक के साथ मर्ज ना हो, ठीक है। लेकिन मैं लिंक लिस्ट का एक कॉपी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मुझे उसमें एलिमेंट को ऐड या डिलीट करना है तो लिंक लिस्ट में वो ऑपरेशन ज्यादा फास्टर है, तो मैं उसकी जगह लिंक लिस्ट पास कर दूंगा। और दो कॉपी बनाने पे कोई मेमोरी वेस्टेज मेरी नहीं हो रही है, सिर्फ लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल एडिशन बन रहा है दो बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपके चार ही बने हुए हैं। हीप में तो वही चार ऑब्जेक्ट है। इस लिस्ट में और उस लिस्ट में जो रेफरेंस वेरिएबल आके ऐड हो रहे हैं उन्हीं के रेफरेंस वेरिएबल ऐड हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट को दो जगह से रेफर किया जा रहा है। हाँ, हमारी एक्सक्यूशन टाइम जरूर अलग अलग ऑपरेशन के लिए बच जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। बात क्लियर हो रही गैस? ठीक है, ये चीज सब मैटर करेगी जब यहाँ पे 4 की जगह आप 4 लाख एलिमेंट को ऐड करेंगे। और फिर आप सिंपल सा एक काम करो, जब ऐसा करो ना तो एक बार फीड ऑल एनिमल्स यूज कर रहे हो आप प्रिंट करने के लिए, राइट। एक ऑपरेशन लो जिसमें एक और मेथड बनाओ जिसमें ऐड और रिमूव कर रहे हो एलिमेंट को, ठीक है। रैंडमली इंडेक्स पोजीशन को जनरेट करो, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल 4 लाख है तो आप लूप चलाओ 2 लाख तक, ठीक है ना। और हर बार मतलब से फॉर एग्जांपल अल्टरनेट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, 0 करा तो अब 1 को नहीं, अब 2 करेंगे, अब 5 को करेंगे, कर सकते हो। ऐसा करके एक लूप चला के एलिमेंट को रिमूव करते जाओ, ठीक है। तो दो ऑपरेशन हुए, एक सिंपल रीड का ऑपरेशन हो गया, दूसरा रिमूवल का ऑपरेशन हो गया। और उसके ऊपर लगाओ तुम ऐसा से क्या होता है, गेट टाइम इन कैलेंडर, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस होता है इसमें, डॉट गेट टाइम इन मिलीज, एक यहां पे लगाइए, ठीक है। और इसको एक लॉन्ग वेरिएबल में इनिट टाइम इज इक्वल टू इंस्टॉल कर लो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, इसी चीज को तुम कॉपी करो, कंट्रोल सी, ये मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है फीड ऑल एनिमल्स, राइट। सिर्फ एक मेथड को रखो इसके अंदर, इनफैक्ट इस ऑब्जेक्ट का बनना भी हटा दो यहाँ से, और उसके बाद करो एंड टाइम, एंड टाइम। अब क्या करो, सिस्टम में प्रिंट करो एंड टाइम माइनस इनिट टाइम। तो इस ऑपरेशन में फीड और एलिमेंट्स में जब आपने डायनेमिक अरे को पास करा है तो कितनी मिली सेकेंड्स लगे हैं वो टाइम प्रिंट होकर के आ जाएगा। लेकिन वो तभी मैटर करेगा जब आप 4 लाख 10 लाख इस तरह के एलिमेंट्स को आपने करा, वरना वो माइक्रो सेकंड में जाएगा फिर, राइट। और फिर यही ऑपरेशन आप रिमूव करो, अप्लाई करो किसी एक मेथड को बना करके जिसमें आप बहुत एक्सटेंसिवली एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर रहे हो, और वहां टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है। और उसी मेथड को फिर अरे में कैलकुलेट करो, आपको टाइम डिफरेंस समझ में आ जाएगा। टाइम डिफरेंस कि मतलब आपका अरे में अगर इंसर्ट और डिलीट का ऑपरेशन है
तो वो स्लो है, लिंक लिस्ट में वो फास्ट है। सिमिलरली कंट्ररी, अगर अरे में एक्सेस करने का ऑपरेशन है उसको आप लिंक लिस्ट से कर रहे हैं तो अरे में फास्टर हो रहा है, लिंक लिस्ट से स्लो हो रहा है, क्योंकि वो सीक्वेंशियल रीड है। हाँ, तो लिंक लिस्ट यूज करना है। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना एक बार, लैब में करना है, ठीक है, इसको लैब में करना है, ठीक है, ठीक है। इससे मतलब ठीक है, देखिए आदमी उस चीज को एडवोकेट करता है जिसको वो बिलीव करता है, अब बिलीव करने के लिए इसको देखना जरूरी होता है, ठीक है, तो ये करना है इसको, ठीक है। रोके यहाँ पर।